Hello and welcome friends, this is Pankaj Kapadia, and in this particular session we are going to learn about the small topic that is core balance leakage protection, or you can say it is earth fault protection or leakage protection also for transformer. Fine. So here an earth fault protection usually involves a partial breakdown of winding insulation to earth, and the resulting leakage current is considerably less than the short circuit current. Fine. And the earth fault protection may continue for a long time and cause considerable damage before it ultimately develops into a short circuit and removed from the system. So under these circumstances, it is profitable to employ earth fault protection. Fine. In order to ensure the disconnection of earth fault protection or leakage protection in early stage. So the leakage may be small or as compared to the leakage may be so small as compared to short circuit current. Fine. But an earth fault usually involves a partial breakdown of winding insulation to ground, so the resulting leakage current is quite small as compared to short circuit current. फाइन. सो इस कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो भी रिजल्टिंग लीकेज करंट है आपका वो स्मॉल हो सकता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है कंपेयर टू शॉर्ट सर्किट. अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है आपकी कोई भी वाइंडिंग के अंदर, तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है काफी ज्यादा ट्रिमेंडसली हाई होता है. ठीक है. लेकिन पर्टिकुलर इस लीकेज जो भी हम अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर लीकेज प्रोटेक्शन हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, लीकेज जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, ज्यादातर केसेस में स्मॉल ही होता है. ठीक है. सो द अर्थ फॉल्ट में कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम and cause considerable damage before it ultimately develops into a short circuit. So we can remove from the system at an early stage. So it is advisable to protect earth fault protection in order to ensure that the earth fault or leak is removed in early stages. Fine. So an earth fault relay used for it is essentially an overcurrent relay for low setting and operates as soon as earth fault or leak develops. So one method of protection against earth fault in transformer is a core balance leakage protection, and this system, let me just look, this is the core balance leakage protection figure. Fine. So this system consists of three primary conductors, as you can observe here, these three primary conductors surrounded by magnetic core, or you can say magnetic circuit of a current transformer, and this has a single secondary winding which is connected to relay operating coil. And under normal condition, we can say that when there is a no earth fault, the instantaneous sum of the currents in three phases is always zero. Fine. And there is no resultant flux in the core of the CT, and so no matter how much the load is out of balance. Fine. So thus no current flows through the relay operating coil and trip circuit remains open. So what happens here, it consists of these three phases. This consists of three primary conductors surrounded by the magnetic circuit of the CT, and this has the single secondary winding connected to earth fault relay. As you can observe here, I have taken power transformer here. हमने पावर ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लिया है. ठीक है. ये स्टार डेल्टा कनेक्टेड पावर ट्रांसफॉर्मर हमने लिया है. तो हम क्या करेंगे कि ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है वो करंट ट्रांसफॉर्मर हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो तीनों के तीनों फेजेस जो है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे. फाइन. सो तीनों के तीनों फेज जो है इसको अकॉर्डिंग आ गए हैं, और यहाँ पे ये करंट ट्रांसफॉर्मर की कोर है, हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो है it will act as a primary and this particular secondary winding is connected over here. तो ये जो है हमारी secondary winding के हिसाब से वर्क करेंगी. तो ये secondary winding है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाउंड की गई कॉइल है. ठीक है. और यहाँ से हम एक अलग से इसको रिले के अंदर जो भी हम सिग्नल देते हैं सिटी के मार्फत, तो वहाँ पे हम जो है वो सिटी को हम दे देंगे सिग्नल. फाइन. सो यहाँ पे एक रिले कॉइल है
और ये रिले कॉइल जो है वहाँ पे ट्रिपिंग ये ट्रिप सर्किट जो है वो कनेक्टेड है, और ट्रिप कॉइल जो है वो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर ये जो है ये आपका सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के थ्रू कनेक्टेड है। फाइन। सो अब क्या होगा, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो या फिर फेस टू फेस फॉल्ट हो, दो कंडीशन लागू पड़ती है यहाँ पे, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन या फिर फेस टू फेस फॉल्ट, सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू जीरो। सो अगर करंट जीरो है, सम जो है वो तीनों का तीनों जीरो है, सो फ्लक्स इन द कोर भी जीरो होगा, यानी कि यहां से जो करंट जा रहा है वो I1 है, मान लीजिए यहां पे कोई करंट I2 है, यहां पे कोई करंट I3 है, तो तीनों की तीनों करंट जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट उनका क्या होगा, सम क्या होगा, जीरो होगा। इंस्टेंटेनियस जो भी इनका सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। सो अंडर core is covering all three phases. That means the flux passing through this core, which will link in the secondary, and this flux will be resultant flux. Fine. So यहाँ पे जो फ्लक्स जा रहा है वो मान लीजिए यहाँ पे phi r है, यहाँ पे कोई फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो phi y है, यहाँ पे कोई phi b है। ठीक है। सो वेक्टर या फिर फेजर सम क्या होगा, जीरो होना चाहिए अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, तो रिले आपकी ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है। सो दिस फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड of the current transformer because of the primary current, that we can tell that the current induced in the secondary side is what, I2 is proportional to sum of current passing through R phase, Y phase and B phase also. So under normal operating condition, balanced load will be there like this, IR, IY and IB. सो बैलेंस कंडीशन में क्या रहेगा, अगर फॉल्ट नहीं है तो इस तरह से जो भी है बैलेंस कंडीशन में IR, IY और IB जो है वो तीनों को तीनों वो पास होते रहेंगे, और वहां पे सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, तीनों के तीनों करंट का जीरो होगा। तो जीरो होगा तो वहां पे कोई फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, एक्स्ट्रा फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, वो फ्लक्स डेवलप नहीं होगा तो यहां पे इस पर्टिकुलर ये जो कोर है उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा या फिर फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, तो उस हिसाब से यहां पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो रिले जो है आपका वो इनऑपरेटिव रहेगा। फाइन। लेकिन अगर यहां पे फेस टू फेस फॉल्ट यहां पे अगर कोई मान लीजिए कि अर्थ फॉल्ट कोई हो चुका है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि अर्थ फॉल्ट में सम ऑफ द करंट विल नॉट बी जीरो, करंट जो है वो जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर फॉल्ट आया है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आया है, अर्थ फॉल्ट आया है, तो यहाँ पे जाने वाला करंट जो है वो I1 इक्वल होगा ये I2, लेकिन ये जो है यहाँ पे फॉल्ट जो होगा तो यहाँ पे जो I3 करंट है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से निकलने वाला करंट, देखिए करंट कहाँ से आ रहा है, इंड्यूस कहाँ से हो रहा है, प्राइमरी में सही हो रहा है ना, प्राइमरी में सही हो रहा है। सो यहाँ पे ये आर फेज है तो यहाँ पे इंड्यूस होगा, ये वाई तो यहाँ पे इंड्यूस, ये यहाँ पे इंड्यूस होगा। फाइन। ये डेल्टा कनेक्शन है। ओके। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे होने वाला इंड्यूस होने वाला करंट, मान लीजिए यहां पे कोई 5 एम्पियर करंट है, तो यहां पे इंड्यूस होने वाला करंट मान लीजिए यहां पे कि 5√3 एम्पियर है। फाइन। सो यहां पे भी 5√3, यहां पे भी 5√3 मान लेते हैं हम, यहां पे भी 5√3, लेकिन अगर यहां पे फॉल्ट होगा तो ये इस हिसाब से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा कि इसका तीनों का जो सम है वो क्या, क्योंकि इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, अगर इनकमिंग जितना है उतना आउटगोइंग नहीं रहेगा फॉल्ट के हिसाब से, यहां पे फॉल्ट हो गया तो रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी। फाइन। सो 20% ऑफ करंट कैन ऑपरेट योर रिले। फाइन। अगर फॉल्टी करंट जो है वो 20% है आपका फुल लोड करंट के हिसाब से, तो ये रिले आपका ऑपरेट कर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर फेस टू फेस फॉल्ट है तो इसमें ये रिले काम नहीं करेगी आपकी। मान लीजिए यहां पे अगर मैं ले लूं कि ये बैलेंस कंडीशन में आपका था IR, ये बैलेंस कंडीशन में आपका था IY और ये था IB। फाइन। सो अगर अनबैलेंस कंडीशन में देखते हैं फेस टू फेस फॉल्ट अगर हुआ, सो ये IR हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा है, IY का इतना मैग्नीट्यूड बढ़ गया, IB का भी इतना बढ़ गया, लेकिन सम जो वेक्टर सम रहेगा वो तीनों का तीनों कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। सो फेस टू फेस फॉल्ट में ये रिले जो है आपकी वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें कुछ अलग जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन
लेकिन यहाँ पे ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़िया तरह से ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो अगर ये फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो सम जो है वो जीरो नहीं होगा, तीनों करंट जो है वो फेजर सम है वो जीरो नहीं होगा। तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर जो ये वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में आपका करंट इंड्यूस होगा और वो करंट जो है वो रिले कॉइल के थ्रू यहाँ पे जाएगा और ये प्लंजर को खींच लेगा, और जैसे ही ये यहाँ पे खींच लेगा ये ट्रिप सर्किट आपकी कनेक्ट हो जाएगी और बैटरी के थ्रू यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो है वो क्लोज हो जाएंगे और आपके ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, so thus no current flows through the relay operating coil and trip circuit remains open when there is no fault. But when earth fault occurs, the sum of the three currents is no longer zero and a current is induced in the secondary of the CT and the CT causing the trip relay to operate and isolate the transformer from the bus bar. Fine. So this is all about the core balance leakage protection. Thank you.